Yes. Right, Registrar Mr. Manwar, Mr. Why they cannot be given benefit of circular dated 710? What is the problem in giving that benefit? आपने किसी एम्प्लॉय को दिया नहीं आज तक कभी? Mr. Patwardhan, this is under the Industrial Dispute Act. Reference has to be answered either by Labor Court. If Labor Court has not answered, then High Court can answer. You choose not to appear, then we can't help. You can't claim as a matter of right कि matter be remanded when there is no valid explanation about non-appearance. हमको 16-17 साल हो गए. Madam, please let them answer. Please don't interrupt. Your lawyer is here. Please sit down. Yes. Right, Registrar Mr. Manwar, Mr. Why they cannot be given benefit of circular dated 710? What is the problem in giving that benefit? आपने किसी एम्प्लॉय को दिया नहीं आज तक कभी? सर आवरली बेसिस वाला सर. आवरली बेसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट है एक क्या सीपीसीटी नाम के एक टेस्ट है सर, वो क्लियर करना पड़ती है, उसके बाद में इनको वो बेनिफिट दिए जाते हैं. 7/10/2016 में कहाँ से सीपीसीटी आ गया? एक सर्कुलर था आपके पास जो आप दे रहे थे. दिखाइए. I have something different to submit. हाँ. So far as regulation is concerned, that is a closed chapter for the reason that award has not been challenged by the other side. So Not to be challenged. So now it is only the question which is for considered before this honorable court is in respect of relief which has been granted by the court. Mr. Patwardhan, this is under the Industrial Dispute Act. Definitely. Reference has to be answered either by Labor Court. If Labor Court has not answered, then High Court can answer. So if reference if there is that some relief can be given or not, this High Court can answer the reference. So there is no need to file cross suit or cross appeal if reference is to be answered. It's not in regular first appeal under civil law. It is under ID Act. So I can answer this reference whether they are entitled or not, despite there being any cross appeal or challenge to them. So this is the ID Act, peculiar things in the ID Act. I differ on that issue. We are not on that issue as on date. So far as the two persons. No, on last date also you raised this objection that there is no appeal. So no relief can be granted which has not been granted by Labor Court. It's a reference. I can answer it. Lordship are entertaining a writ petition at the instance of employer challenging that order. Therefore, maybe. At the most, what can be done? The matter can be remanded back. No, this court appellate court has a same power which is. Lordship kindly consider. It is an ex parte award. And in ex parte award, my reply is not there, my stand is not there, my evidence is not there. I had no opportunity to cross-examine any of the witnesses. You choose not to appear, then we can't help it. You choose not to appear, then we can't help it. You can't claim as a matter of right the matter be remanded when there is no valid explanation about non-appearance. Then you can't claim as a matter of right. The matter be remanded back, I will give evidence. Once the opportunity has been given, you did not avail, then this court will consider. Lordship, they are working since when? More than 10 years? 20 years? हमको 16-17 साल हो गए. Madam, please let them answer. Please don't interrupt. Your lawyer is here. Please sit down. When you are represented by a lawyer, then don't interrupt in the court proceedings. Otherwise I will adjourn for sanity. Yes. Actually, there is a list I can file up. That shows the initial date of appointments, their engagement. दो 2008 से 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्लास 3 कुछ तो क्लास 3 पे हैं, क्लास 4 which is the award? Connection? E4? नहीं, E2 है. Award B2, 21, page 21.
सेवारत प्रोजेक्ट 2019 से तो न्यूनतम शिक्षा अधिकारी है प्राप्ति को उक्त अवधि में भुगतान के Para 21, 2021. Yes. It's 20. Minimum relief of minimum wages has been granted. 21. तो कहने की स्टैंडिंग ऑर्डर्स में दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर क्लासिफिकेशन जी परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट रिक्त पद होना साबित नहीं है। इसके अलावा उनकी नियोजक प्रतिवासी के नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के नियमानुसार होना भी साबित नहीं। इस प्रकार उन्हें स्थायी कर्मचारियों को उल्लंघित नहीं किया जा सकता है। इस पर नियमित किए जाने का पात्र नहीं। न्यूनतम वेतन पाने के हकदार वही 610 वाले रिलीफ है तो मिनिमम पे तो मिनिमम पे वो तो नहीं है क्योंकि मिनिमम पे तो देखी जाएगी तो वो उस रेगुलर एम्प्लॉय की या जो कार्यभारित एम्प्लॉइज हैं उनका जो न्यूनतम वेतन है वो देखा जाएगा। यहाँ जो कोर्ट का डायरेक्शन है वो न्यूनतम वेतन का है। जो अब इसमें सवाल ये आएगा कि हाउ दे विल बी क्लासिफाइड बाय द कोर्ट। देयर इज अ कैटेगराइजेशन डन बाय द कोर्ट। The question is, so far as who are unskilled are concerned, there can't be a scale below the unskilled. So therefore, unskilled can be done. But when is categorization of skilled and semi-skilled is given, which that was not the question which was before the court. So again, we'll boil down to the same issue whether court acted beyond the term of reference. Where is the finding that they were appointed on hourly basis? Where is the finding? It is their case. It is their case. Para 8. पैरा 3 में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में है। फिर अवार्ड के पैरा 8 में भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है आपको? 6 घंटे 8 घंटे नहीं, किसी का भी एम्प्लॉय का 8 आवर्स। अगर इनसे 8 आवर्स काम लिया जा रहा है तो ये फिर कहाँ से आवर लिए? तो आपके रेगुलर नॉर्मली 5 to 6 आवर्स पिछले 16 साल से हु रिकॉर्ड्स देयर वर्किंग आवर्स? कोई आपके अटेंडेंस का क्या प्रोविजन है? यही अटेंडेंस डेली वेजेस पे लेकिन डेली बेसिस पे अटेंडेंस, उसमें आवर तो नहीं लिखे जाते। उसमें अटेंडेंस पर फॉर्म भरते हैं उसमें आवर तो ऐसा भी होता है कोई एम्प्लॉय 1 घंटे काम करके चला जाए? हो सकता नहीं है। एविडेंस ऐसा है कि नहीं? चले जाते ऐसा होता है, मतलब क्योंकि वी कैन नॉट मॉनिटर ऑल द एम्प्लॉइज। So then how calculate the wages payable if there is no monitoring or there is no record? Whatever we give work and accordingly just we ask and we give. But there is no record on our biometric. There is no attendance provision. So then you give them a fixed wages every month. कभी किसी का हुआ कि किसी को महीने भर में फिक्स ही होता है ना क्या 200-300 रुपए मिले हो? डिपेंड करता है कि कितने दिन आए, उसके हिसाब से बिजी नहीं, डे आई कैन अंडरस्टैंड, बट आवरली का रिकॉर्ड आपके यहाँ आवरली बेसिस पे किसी को 1 घंटे का वेजेस हुआ? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय देम इसके अंडर में काम करता होगी वो इट इज गिवन बाय देम एंड वेरीफाइड बाय द कंसर्न सुपीरियर। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द आवर्स सपोज आपने 4-5 घंटे काम ले लिया, बाकी 2 घंटे 3 घंटे के लिए इनको कहाँ काम मिले? नहीं कोई काम चले जाए, मतलब they are you are engaged them permanently छोड़ दिया because they don't have a
अदर वर्क टू 3 घंटे के लिए कहाँ नौकरी ढूंढने जाएंगे 2 घंटे के लिए? आपके यहाँ काम करके गए, आप ही के यहाँ के लिए होगा। अब आप चाहे उनसे 2 घंटे काम लें चाहे 6 घंटे काम लें, बट यू हैव एंगेज देम परमानेंटली। आप बता रहे हैं कि वहां से जाने के बाद कई लोग हैं जो दूसरी जगह काम भी करते हैं। नॉट ऑनली एविडेंस होना चाहिए, आपको क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए कि आप हमारे से 2 बजे चले जाते, 2 से 5 आप कहीं और काम करते। वो तो सर मौका मुझे मिला नहीं है, अदरवाइज डेफिनेटली वो बातें आ जाती। यू हैव एंगेज देम परमानेंट। अब आप कहें कि नहीं हमने सैटरडे संडे को एंगेज नहीं किया, वो उस दिन वो कहीं और कर सकते काम, ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव एम्प्लॉयड देन यू हैव एम्प्लॉयड फॉर एंटायर मंथ और एंटायर ईयर और एंटायर, कांट से कि नहीं 2 घंटे। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में आप ऐसा करेंगे आवरली, प्राइवेट फैक्ट्री में होता है जैसे, ऐसा थोड़ी चलता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपके क्लासेस लिमिटेड पीरियड के लिए लगती है, लिमिटेड पीरियड के लिए, उसको आवरली थोड़ी देंगे। वो एक्चुअल रीजन ही वो है कि वो चूंकि क्लासेस पेरिनियल नेचर वर्क है, आप इतने 16 साल से काम ले रहे हैं, मतलब आपके पास रेगुलर वर्क है इनके लिए। तो इतना विक्टिमाइजेशन थोड़ी होगा कि 4-5 घंटे का पैसा देंगे, बाकी टाइम का नहीं देंगे। बाकी हाउ दे विल सर्वाइव? जब मिनिमम वेजेस, मिनिमम पे स्केल और मिनिमम का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। जब इसके बारे में बातचीत चल रही थी तो एक ऑफर मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था कि दे कैन बी एंगेज थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसीज, तो वो आपने रिफ्यूज कर दिया। दैट वाज एन ऑफर व्हिच वाज गिवन एंड अभी आपकी मर्जी है, फिर उनकी मर्जी पे हो जाएंगे। मर्सी तो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं लेता किसके लेगा, they will have to that contractor will have to give them full day salary, मिनिमम वेजेस का कंप्लायंस उसको करना पड़ेगा, मैंडेटरी तो होगा। गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस इशू कर दी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए, पूरे डिटेल रूल्स बना दिए, कंडक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिनरी रूल्स बना दिए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि सब जगह वही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंगेज हो रहे हैं। 2023 में आए डिटेल्स, उसमें कैसे वर्क लेना, कैसे डिस्प्ले एक्शन लेना। अब everything is there. प्रॉब्लम ये है कि this can be discussed. They can go and seek conference in this regard. But the problem is that because of the matter will go before the EC, and EC is not likely to be convened before 4th of June. That is the problem. Therefore, they can't give any आपको 16 अगस्त से टाइम दे रहे हैं कि आप कुछ सेटल कर लीजिए। नॉट सेटल, यू हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन बाय योर। नहीं, मीडिएशन तो सर गए थे, मीडिएशन तो 16/8 का ऑर्डर देखिए, हमारा डिटेल ऑर्डर है। मीडिएशन तो आप दोनों अपियर हुए थे, आप both of them had appeared in the mediation and भी प्रयास करके देखिए, देन लेट मी डिसाइड दिस मैटर। व्हाई टू, आपके तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं दिख रहा। लॉर्डशिप में ही है, लॉर्डशिप है। हाँ, ये सब मेरिट पैरेंट डिसाइडेड। एनी अदर पॉइंट? आप लोग बैठे, प्लीज टेक सिट, बट आप भी बैठे। हाँ ठीक है।